جی سچی بات ہے، بڑی تھوڑی سی کوشش تھی راجہ سلمان صاحب، اور کچھ میں ان دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو ان کی یہ ایک ہی برادری ہے جی، ابھی دو فریق بن گئے، راجہ افتخار صاحب اور راجہ ساجد صاحب۔ یہ سب سے اچھی بات ہے، میں بہت ہی مشکور ہوں ساجد بھائی کا، ان کی عزیز و اقارب کا، کہ فی سبیل اللہ یہ معاملہ طے ہو گیا۔ اللہ مہربانی کرے گا، یہاں بھی معافی ہو جائے گی اور آخرت بھی معافی ہو جائے گی۔ کے بعد اور تھوڑے سے وقت میں اس طرح کا اجتماع اکٹھا کر لینا اور کر کے اور آپس میں ایک دوسرے سے راضی ہو جانا، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ بہت بڑی قربانی ہے دونوں فریقوں کہ انہوں نے اپنے جھگڑے کو ختم کر کے وہاں بیٹھنے کا سوچا اور ایک اچھی سوچ لی کہ جو ہم دشمنی آگے بڑھائیں گے آج اسے یہیں پر ختم کر دیں۔ اور یہ میں آج جنہوں نے معاف کیا ہے ان کے لیے خوشخبری بتاتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے نا، تو مکہ والوں نے تھوڑے ظلم نہیں کیے تھے اللہ کے رسول پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر اونٹ کی اوجری لا کر رکھ دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو طلاقیں دے دی گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے، آپ کے صحابہ کو زخمی کر دیا گیا، آگ کے اوپر لٹایا گیا، اور یہاں تک کہ کوڑے مار مار کر کوڑے مارنے والے تھک جایا کرتے تھے۔ بڑا ظلم و تشدد ہوا۔ اور صحابہ میں جب یہ واپس آ رہے تھے نا مکہ میں، تو حضرت سعد بن معاذ کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھا۔ انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج ہم بلال حبشی کی تکلیفوں کا بدلہ لیں گے، آج ہم خباب بن ارد کی تکلیفوں کا بدلہ لیں گے، آج ہم صحابہ کی اور حضور علیہ السلام کی تکلیفوں کا بدلہ لیں گے۔ آئے رحمت للعالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سعد بن معاذ سے جھنڈا لے لو، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا اور فرمایا نعرہ لگاؤ الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیتا۔ میں وہی اعلان کرتا ہوں جو سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بھائیوں کے لیے کیا تھا۔ آج محمد عربی اپنے قریش کے بھائیوں کے لیے وہی اعلان کرتے ہیں کہ میں کسی کو بھی کوئی بدلہ نہیں لوں گا، میں عام معافی کا اعلان کرتا ہوں، حتیٰ کہ میں اپنے چچا سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے خون کو بھی معاف کرتا ہوں۔ وحشی بن حرب جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، آپ سارے جانتے ہیں کہ وہ کتنا دردناک واقعہ ہے، وہ کس طرح کا قتل ہے۔ جب آپ سے سن نے وحشی بن حرب کو کہا معافی تو تجھے ہے، ایک بات کا خیال کرنا، تو میرے سامنے کم آنا، جب تو سامنے آئے گا مجھے اپنا چچا یاد آئے گا۔ لیکن سید الشہداء حضرت حمزہ کے اس قاتل کو جب معافی ملی، جو اسلام لاتا تھا تو پھر صحیح دل سے لاتا تھا، پھر ان کے دل صاف ہو جایا کرتے تھے، یہ راتوں کو رویا کرتے تھے وحشی بن حرب، اور اللہ سے دعا کیا کرتے تھے یا اللہ میرے ہاتھوں سے تیرے محبوب کا محبوب چچا قتل ہوا ہے، اب میرے ہاتھوں سے کہ اپنے پیغمبر کا تو دشمن قتل کرا۔ کیسی سوچ۔ اور پھر آپ کو بتاتا چلوں تاریخ اسلام اس بات پر شاہد ہے کہ مسلمہ کذاب نے جب جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تو جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب کو قتل کرنے والا یہی وحشی بن حرب۔ پھر وہ اس دن اس نے نعرہ لگایا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آج میرے ہاتھوں سے تیرے محبوب کا دشمن قتل ہو۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر کوئی قوت غضبیہ ہمارے اندر موجود ہے، ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، لیکن یہ کفر کے لیے ہے، یہ اسلام والوں کے لیے نہیں ہے۔ آپ بھائی بھائی بن گئے ہیں، اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں۔ ان حضرات نے جنہوں نے محنت کی ہے آپ کو اکٹھا کرنے میں، ان کو بھی اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ بات کو دہرانا مقصد نہیں، انہوں نے مولانا نے یہ بات کی ہے کہ دل جوڑنا کتنی بڑی بات ہے اور پھر دل توڑنا کتنا برا عمل ہے۔ یہ بات ہو چکی ہے، اس لیے مزید اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو بھی، اور جہاں کہیں بھی یہ لوگ ناراض ہیں مسلمان ہیں، ان سب کو آپس میں محبت عطا فرمائے، ان تمام کے وہ فتنے اور فساد اللہ تعالیٰ ختم فرما دے۔ آج مجھے خوشی کی مقام ہے کہ میں یہ دوسرا فنکشن ہے جو اسی لڑائی اور جھگڑے کے بعد صلح کا ہوا ہے۔
ये मैं दूसरी जगह पर हूँ अभी, जिनको एक बहुत बड़ा वो भी मामला था, वो पख्तूनों और पंजाबियों की एक बड़ी लड़ाई थी और उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने राजीनामा कराया था। आज भी उसकी भी इसी तरह दावत। तो ये अल्लाह के फजल और करम से आज दूसरा मौका है जिसमें हम सब शरीक हैं। आपके जितने हज़रात के हैं शरीक हैं, ये भी इस सवाब से खाली नहीं कि एक अच्छे अमल में हम सब शरीक हैं। अल्लाह ताला इस सब का अजर, जितने लोगों ने भी इसमें कोशिश की या इस मामले में खुश है, अल्लाह उन सबको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। ताला सबको इसका सवाब पहुँचाए। हमारी जी सच्ची बात है, बड़ी थोड़ी सी कोशिश थी राजा सलमान साहब, और कुछ मैं उन दोस्तों को सलाम पेश करता हूँ जो इनकी ये एक ही बरादरी है जी। अभी दो फरीक बन गए, राजा खार साहब और राजा साजिद साहब, जो इस बरादरी के पस पर्दा जिन्होंने किरदार अदा किया है। कुछ लोग होते हैं जी, वो थोड़ा बहुत करते हैं, वो इंसान खुद ठीक हो तो बातें आगे नहीं बढ़ा करती हैं, लेकिन उन लोगों को प्रमोट करना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए जिन्होंने पसे पर्दा रह के ये किरदार अदा किया है कि ये मामला जल्द अज जल्द निमट जाए। मैं बिलखसूस उनके दर्जात की बुलंदी के लिए, उनकी दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए मैं दुआगो हूँ और मैं दोनों हाथों से उनको सलूट करता हूँ। और इससे बाद ये अल्लाह ताला ने दिल में बात डाली है भाई इफ्तिखार साहब के कि एक मामला हो गया, गलत हो गया, हमारी एक बरादरी है, खून है, इसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मैं इस बात का गवाह हूँ जी। और दूसरी तरफ देखें, अल्लाह ताला का फजल, उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से ये मेरे भाई हैं साजिद भाई, इनके दिल में भी अल्लाह ताला ने बात डाली है। बड़े अजीम लोग होते हैं वो, जो माफ़ करते हैं, सब्र करते हैं। अल्लाह ताला उनका मकाम और दर्जात ना सिर्फ यहाँ पे भी बल्कि आखिरत में भी बुलंद करता है। और सबसे खूबसूरत बात जो हुई है, देखिए ये दुनिया के मामलात हैं, यहाँ तो पैसे दे के सिफारिशें करा के माफ़ी तलाफ़ी हो सकती है, लेकिन आखिरत के मामले नहीं हो सकते। ये सबसे अच्छी बात है। मैं बहुत ही मशकूर हूँ साजिद भाई का, इनकी अजीज़ व कारब का, कि फ़ी सबीलिल्लाह ये मामला तय हो गया। अल्लाह मेहरबानी करेगा, यहाँ भी माफ़ी हो जाएगी और आखिरत भी माफ़ी हो जाएगी। जहाँ तक गुस्से की बात है जी, ये गुस्सा किसी एक की मलकियत नहीं होता। ये किसी गरीब को भी आ सकता है, किसी अमीर को भी आ सकता है, छोटे को भी आ सकता है, बड़े को भी आ सकता है। लेकिन बहादुर होते हैं वो लोग जो इसको पी लेते हैं, इसको बर्दाश्त करते हैं, अगली नस्लों में नहीं जाने देते, उसको यहीं पे रोक लेते हैं। लेकिन याद रखें, हदायत उन्हीं को मिलती है जो हदायत मांगते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं। मैं सिर्फ ये बात कह दूं कि मुझे एहसास हो गया जी मैं इंदा मुताद रहूँगा, तो ये बात काफ़ी नहीं है। मादत के साथ ये वक्त एक कसूड़ी है जो मेरे इस किरदार को बताएगी कि जो मैंने वादे वईद किए, जो अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मुझे एहसास हुआ मुझसे गलती हुई, मेरे बच्चों से गलती हुई, ये वक्त बताएगा कि वो आगे कहाँ तक अपने मामलात को संभालता है, कहाँ तक अपनी कोशिश करता है कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हों। तो मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ भी करता हूँ एक ही बरादरी के दोनों फ़रीक़ैन से कि आइंदा इंशाल्लाह कोई ऐसा मामला नहीं होगा। दोनों अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे, अपने बच्चों को समझाएंगे, वो हमारे बच्चे हैं, छोटे हैं, उन्होंने आगे बढ़ना है, उनकी शादियाँ, उनके छोटे बच्चे हैं, उन्होंने फलना फूलना है, उन्होंने कारोबार करने हैं, नौकरियाँ करने हैं, ना कि यहाँ पे लग जाएं। जैसे हज़रत साहब ने बात की, वो पुलिस को पैसे दें, कचहरी वालों को दें, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। और ये असल बात मैंने आपको बता दी है। ये इन दो भाइयों ही का कमाल है जिनके दिल में अल्लाह ने बात डाल दिया। हमने तो एक रास्ता सा दिया है, एक थोड़ी कोशिश की है। और बिलखसूस वो जो पर्दे के पीछे लोग से मैंने उनका जिक्र किया, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे यहाँ पे भी और अगली दुनिया में। उन्होंने कोशिश की है, उन्होंने एक रास्ता मुआर किया है। और आज मैं इनकी बड़ा दुख वाला मामला था, और हम नीचे बैठे हुए तो साजिद भाई ने जिक्र किया कि अब मेरा भाई चला गया इस दुनिया से, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन मेरे लिए आज का दिन इंतहाई खुशी का दिन है कि हमारा आपस में राज़ीनामा हो रहा है। मैं सैल्यूट करता हूँ जी साजिद भाई आपको। और इसी तरह के जज्बात मेरे भाई इफ्तिखार साहब के भी थे। तो मैं आखिर में फिर आप सब दोस्तों का, थोड़ी बहुत देर भी हो गई है, मैं इंतहाई मशकूर हूँ और ममनून भी हूँ। बिलखसूस अपने बुज़ुर्गों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। मौलाना साहब से दरख्वास्त से दुआ भी करवाएँ, जो हमारे भाई फ़ौत हो गए हैं, और दो बच्चे हमारे ज़ख्मी भी हैं, एक अस्पताल में है, वो अल्हम्दुलिल्लाह घर में आ गए, और एक
जेल में, वो भी शायद अस्पताल में, अल्लाह ताला उसको भी सेहत दे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मालिक मौला, हम यहाँ पर मिल जमा बैठे हैं एक जगह पे। इलाहुल आलमीन तमाम का आना इस मुक़द्दस महफ़ल में अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम को अपनी बारगाह से कदम कदम पे अजर अज़ीम अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो दूर व नज़दीक से यहाँ तशरीफ़ लेकर आए हैं तमाम को अपनी बारगाह से अजर अज़ीम अता फरमा। इलाहुल आलमीन हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज दिन तक जितने भी मुस्लिमीन मुस्लिमात मुमिनीन मुमिनात इस दुनिया फ़ानी से चल बसे हैं तमाम की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। तमाम के दरजात को बुलंद फरमा। तमाम की क़ब्रों को अपने नूर से मुनव्वर फरमा। इलाहुल आलमीन ख़ुसूसन बिलख़ुसूस जो इस हादसे में इस दुनिया फ़ानी से चल बसे हैं भाई गुलफराज, मालिक मौला, हम तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं, दुआ करते हैं इलाहुल आलमीन उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन दुनिया में रहते हुए जितनी भी उनसे लग़्ज़शें हुई, ख़ताएँ हुई, मौला तो रहीम है, करीम है, तुझे तेरी रहीमी करीमी का वास्ता तो उन्हें माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना। इलाहुल आलमीन उनकी कब्र को ताहद्द निगाह तक कुशादा व वसी फरमा। इलाहुल आलमीन उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा, सब्र पे अजर अज़ीम अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम सबको मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो बीमार हैं उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा। जहाँ भी हजूर का कलमा पढ़ने वाले घरों में, अस्पतालों में, जहाँ भी कोई बीमार है तमाम को सेहतयाबी अता फरमा। इलाहुल आलमीन खसूसन बिलखसूस इस हादसे में दो हमारे भाई जो बीमार हैं, ज़ख्मी हैं, इलाहुल आलमीन हम तेरी बारगाह में उनके लिए भी दुआ करते हैं, उन्हें सेहतयाबी अता फरमा, शिफाए कुल्ली अता फरमा। इलाहुल आलमीन शिफा अता फरमा कर सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो परेशान हाल है उनके परेशानियों को दूर फरमा। जो मकरूज़ कर्ज़े से खुलासियाँ अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं मेरे मौला तो उनको हलाल रोज़गार अता फरमा। रोज़गार वालों के रोज़गार में मज़ीद बरकतें वसाअतें नाज़िल फरमा। इलाहुल आलमीन हम सबको हजूर की सच्ची और सुच्ची गुलामी अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम सबको आपस में इत्तफ़ाक़ इत्तेहाद की दौलत से माला माल फरमा। इलाहुल आलमीन जिन्होंने इस राजनामे की कोशिश की है इलाहुल आलमीन उनको अपनी बारगाह से अजर अज़ीम अता फरमा। मेरे मौला ठहरो ठहर अजर अज़ीम अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो सामने थे या जो दीवार के पीछे थे, पसे पर्दा थे, उनको भी अपनी बारगाह से अजर अज़ीम अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम सबको ज़िंदगी इस्लाम पे और मौत ईमान पे नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।